Dimasa organizations unite to demand justice in unsolved murder cases and decry law enforcement inaction in Dima Haso. In a powerful press meet held at the office of Jadike Nasho Hoshom, the apex Dimasa body, leading Dimasa civil organizations including JNH, Dimasa Students Union, All Dimasa Students Union, Dimasa Mothers Association, Dima Jalai Hosam, and Haflong Hafai Awareness Hosam voiced their collective outrage over the disturbing rise of unsolved and mysterious murder cases in Dima Haso district. Officials from these bodies expressed deep sorrow and unwavering condemnation of the continued failure of law enforcement agencies to investigate and resolve these grave crimes. They noted that behind each unsolved case lies a shattered family and a fearful community, with justice eluding the very people most affected. और यहाँ में हम लोग का डिमासा संगठन जितना भी है और 4-5 संगठन हम लोग का एक साथ है यह में जितना भी प्रेजेंट हुआ सबको मेरा तरफ से नमस्कार। तो मैं मीडिया के जरिए से आज कहना चाहता हूँ कि ये महासव में 10 साल से 10 साल से बहुत घटना होके आया। अभी सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद में पहले अग्रपंथी का प्रॉब्लम था, तो बाद में अग्रपंथी से सीजफायर होने के बाद में वो लोग का गवर्नमेंट का सत्ता होने के बाद में अभी शांति आया दिमाग में। तो शांति होने से भी बीच में मर्डर होता है, मिसिंग होता है, किडनैपिंग होता है। तो ये सब लेके आज थोड़ा आप लोग का सामने मीडिया के जरिए से सब पब्लिक को मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो अभी जितना भी मर्डर हुआ ये 5-6 साल के अंदर में 10-12 जन मर्डर हुआ है और किडनैपिंग भी हुआ है। तो इसलिए जब जब मर्डर होता है हम लोग संगठन से हम लोग मेमोरेंडम देता है, लेकिन इसको आज तक हम लोग एक भी आज तक हम लोग जस्टिस नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग आज में प्रेस मीट किया है। तो इसको हम लोग जस्टिस चाहिए, प्रॉपर्ली जस्टिस चाहिए और भविष्य में और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमें जितना भी मर्डर हुआ उसको एक्शन अभी तो हम लोग नहीं देखा है। इसलिए एक्शन नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर क्या करता है, अभी लॉ एंड ऑर्डर का अच्छी तरह से इसको जो मर्डर होता है, जो एक्सीडेंट होता है उसको एक्शन लेना चाहिए। तो अभी तो हम लोग एक्शन नहीं मिला है, इसलिए हम लोग आज का दिन में आप प्रेस मीट किया है और ये भविष्य में ऐसा नहीं होना है और प्रॉपरली हम जस्टिस चाहिए। और जितना भी ये में मर्डर हुआ, मिसिंग हुआ, तो इस सबको इमीडिएटली और इसको दोबारा इसको एक्शन में आना चाहिए। थैंक यू। These are not mere statistics. They are lives lost under suspicious and heartbreaking circumstances. The silence and inertia from law enforcement are deeply unsettling, the representatives declared. The organizations highlighted a troubling pattern: little to no progress in investigations, lack of accountability, and a glaring absence of communication from authorities. They warned that such negligence threatens the rule of law and corrodes public trust. To restore faith and ensure justice, they demanded a thorough, impartial, and time-bound investigation into each unresolved case. Juthai Rajirao, Jini District, Dima Hasauha, Ibulai Nayaba, Michael Jini Bishingha, Hamshning Shbung Dotai Joyaba, Shbung Stai Joyaba, Ram Joyaba, Shbung Kamayaba, Hamshning Bangha. Jini District, Hamshning Doha, Kintai Waitai, Hamshning Bangha. Odehe Ibu Butuni Basauha, Ibu Botna Zaban Basauha, Law and Order Ke, Hamshi Bunchni Yableke, Jing Dinishu Shibo Nuya. Odebani, Dinijing, JNH, DMA, DSU, ATSU, Dimajalai Hosham, Haflong Hapai Awareness Hosham, Jinkrib Gabala Hidini, Press Meet Klaiba, or the press release for Jingridu.
Law and order concerned authorities ibu butu ni basawa hamshishi rikiting hamshishi stayaro ni basawa case dong yaba butu ke case reopen khai pinting audit data jing khai shuladu law and order ni basawa Duhani jathai jangde jing districta jini districta law and order dong chihi jing asha phya kha khadema jing dong phya kha bede hits ka de dinishushi li bangda 2017 mikrang lagi dua shushibo shmung stoi jau phanglangya ba dothai jau ya ba gamaya ba butu hamchining bang phanglang chikabu bobutu case dinishushi solve ja ba ke jing nuya odebani jing questions klai du law and order ke SP nadi klai du DC nadi klai du concerned authorities nadi klai du je dinishushi masya gibo ibo mystery death jaya ba butu mystery killing jaya ba butu ke solve klai fia ba chi Odebani jing tsidu jing baudu J, the law and order in our district is completely a failure. Just picking up the small paddlers, drug paddlers, it's not enough for us. We need justice. We need the case to be solved of all those mystery killings, kidnappings, which happened in our district it started from 2017 till it's happening in our district. And we also have a demand that the main suppliers, the drug suppliers or the dealers must be caught along with the small peddlers. And along with that, we demand for the installations of CC camera and the street lights in all the town areas and the market areas in our district. Thank you. अभी तक जितना जो अनसॉल्व केसेस है दिमा हसाओ में किलिंग्स हो मिसिंग्स हो किडनैपिंग हो उन लोगों का नाम है विक्टिम्स है यहाँ पे वीर लंकासा ये खालिंदिसा का है और ये इंसिडेंट हुआ 2017 उसके बाद बीवेन केम्प्राई ये ही बिलोंग्स फ्रॉम सूरत नगर वो 2017 में उसका ये हुआ देन प्रोबंटा हकमोसा माइबांग 2018 मिथुन दिब्रागटे माइबांग 2018 संतोष पुजाय हरंगजा 2020 Babujit Hapila Gungjung 2023, Sliding Hojai Gadain Raji 2024, Ranjit Daulaguful Langtin 2024, then Nobu Kumar Lankasa Dimalik Raji 2025, Panna Roy Madhatila 2025, Kartik Das Lower Haflong 2025, Rakesh Daulaguful Dihangi 2025, Bim Bahadur Thapa Khasipur 2025. जो ये इंसिडेंट हम लोग का पास जो रिकॉर्ड है वो 2017 से लेकर अभी तक 2025 है उसके आगे भी इस तरह बहुत सारा हुआ होगा बट वी डोंट हैव दैट रिकॉर्ड्स अभी जितना है वो अभी बोला है हाँ क्योंकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है जस्टिस नहीं मिला है तो ये हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को रिक्वेस्ट करता है कि ये सब केसेस शायद किसी का केसेस तो अभी बंद भी हो गया होगा तो उसको रीओपन किया जाए और उसको सॉल्व किया जाए तभी हम लोगों का आश्वासन रहेगा आशा रहेगा कि हाँ हमारा यहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर है जो हम लोगों को सेफ फील करेगा कि वो लोग के अंदर में हम लोग सेफ है तो अभी इस तरह का लोग मर जाता है किडनैप हो जाता है मिसिंग हो जाता है किसी का जस्टिस नहीं मिलता है तो हम लोग किसको आशा करेगा किसको ऊपर हम लोग ट्रस्ट करेगा तो लॉ एंड ऑर्डर ही है डीसी ही है एसपी है एडमिनिस्ट्रेशन है कंसर्न अथॉरिटी से उन लोगों को आशा करके ये हम लोग को रहता है तो उन लोगों को हम लोग को इसलिए रिक्वेस्ट करता है कि ये सब केसेस जो है थोड़ा गहराई से छानबीन करे अगर वो लोग करेगा तो हम लोग होप करता है कि बहुत कुछ नहीं होने से भी एक दो केसेस सॉल्व हो जाए Reopening of old cases with enhanced forensic support and fresh scrutiny of evidence. Accountability for derelict officers involved in past investigation failures. Regular updates to victims' families on case status and progress. Protection for whistleblowers and witnesses to encourage truth-telling without fear. Installation of CCTV cameras at key public locations in all towns across Dima Haso district. The assembled leaders reaffirmed their solidarity with grieving families and pledged to persist in their advocacy until justice is achieved. They concluded by echoing the principle: justice must not only be done, it must be seen to be done. Speakers at the press meet included Kele Dolgupu, President, Jadike Nasho Hoshom, Pramit Sengyung, General Secretary, DSU Central Committee, and Mapal Kemprai,
Dimasa Mothers Association, among others. आज का जो हम लोग का प्रेस वार्ता है, इसमें हमारे जेनेट्स के प्रेसिडेंट और हमारे साथ है डीएमए के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और आचू के प्रेसिडेंट और दिमासा जलाई होसम के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ हमारा हफ्लोंग हपाई अवेयरनेस होसम का प्रेसिडेंट जी। तो सबसे पहले जितना भी हमारे मीडिया बंधु है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतने कम समय में यहाँ उपस्थित हुए और अपना कीमती समय दिया। तो हालांकि हमारे जो फिलहाल जो हमारा जिला का जो स्थिति है, ये बहुत ही एक दर्दनाक और एक खतरनाक माहौल से गुजर रहा है, क्योंकि हाल ही में कितने सारे केसेस ऐसा गुमशुदा का ऐसा जो कहीं भी किसी भी समय हमारे आसपास में आजकल हम लोगों को डेड बॉडी मिल रहा है। तो इसी के लिए आज पूरा हाफलोंग एरिया में नहीं, पूरा दिमा हसाओ हम लोग का जिला में ही पूरा डर का माहौल है। जो डर का माहौल जो क्राइम करता है, जो दोषी है, उनका ऊपर जो होना है वो चीज अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो आधा अधूरा रह के हम लोग का अच्छी तरीके से जस्टिस नहीं मिलता है। तो इसी के वजह से आज जो इतना बड़ा क्राइम करने के लिए जो सोचता है, उनका मन में हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ डर का माहौल नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ हम लोग का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग का जिला से जो बहुत सालों से हम लोग का जो शांति के लिए प्रयास हो रहा है, अभी धीरे धीरे हो तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इतना बड़ा घटना होके भी यहाँ जो जस्टिस मिलने का जो आधा अधूरा जो हम लोग का सपना है वो जस्टिस नहीं मिलता है। तो इसी के लिए हम लोग का बहुत सारा पेंडिंग केसेस है। ये 2017 से पहले से भी बहुत सारा केसेस है, फिर भी जो हम लोग का अभी लिस्ट है ये 2017 का बात नहीं है। और हाल ही में जो लगभग ये ही हफ्ता में, जो पिछला हफ्ता में ही 2 सब ऑलरेडी ये नदी से मिला है। तो हम लोग ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्यों बार फेलियर होता है, ऐसा क्यों जस्टिस दिलाने नहीं सकता है, और साथ ही साथ ऐसा थोरो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता है। आखिर सालों के बाद ये जो केसेस होता है ये पेंडिंग हो जाता है, ये दब जाता है, फाइलों में ये दब जाता है और अल्टीमेटली इसका कुछ अच्छे तरीके से छानबीन नहीं होता है। और जो है हम लोग का देखिए, ये हम लोग का संगठन का काम जो है, हम लोग सिर्फ कैंडल लाइट मार्च करना या जस्टिस डिमांड करना या मेमोरेंडम जो है ये फाइलों में दब जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है कि और एक नया से नया केस आ जाता है, लेकिन वो जो पिछला केस जो होता है वो हमेशा पेंडिंग ही रह जाता है। हाल ही में जो हम लोग का रश्मिता होजाई का केस का बाद में ही तो ये 2 केसेस अभी उभर के आया है। तो कल ही शायद भीम बहादुर थापा एक बुजुर्ग, उनका शव नदी में मिला है। उससे 2 दिन या 3 दिन पहले ही एक गुमनाम जो शव मिला है, वो भी जोराई नदी में ही मिला है। तो ऐसा अगर चलते रहेगा तो हम लोग अगर भविष्य में हम लोग का जो अभी दिमा हसाओ एक तेजी से टूरिज्म प्लेस जो उभर के आ रहा है, एक घूमने का हम लोग का जो घूमने फिरने का माध्यम, जो टूरिज्म का जो सिर्फ बाहर से पर्यटक ही नहीं, हम लोग का भी एक इसमें लाइवलीहुड होता है। तो इस चीज में अगर जिस प्रकार से मेघालय का जो पुलिस है वो लोग एक हफ्ता में ही जो इतना बड़ा सनसनी केस जो मर्डर केस हुआ था उसको अगर सॉल्व कर सकता है, तो हमारे यहाँ का जिला का, हमारे यहाँ का स्टेट का पुलिस लोग इतना बड़ा केस को ऐसा क्यों पेंडिंग होता है। तो साथ ही साथ हम लोग जो हमारे डीएमए के जनरल सेक्रेटरी जी ने कहा था कि प्रोमिनेंट लोकेशंस जो हम लोग का मार्केट एरिया हो या दुकानें हो या ऐसा जो पेट्रोल पंप हो या कहीं भी जो जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि हाँ ये एक सुनसान जगह है, इसमें सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होना है, तो हम लोग खास तौर से ये हम लोग का टाउन कमेटी का चेयरपर्सन को भी और विभिन्न जो हमारे टाउन कमेटी से, चाहे वो उमरंगसो हो, लांगटिंग हो, माईबांग हो, ड्यूंगरा हो, उन लोगों को भी हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द सीसी कैमरा इंस्टॉल किया जाए। और साथ ही साथ हमारे जो ट्रैफिक जो लॉ एंड ऑर्डर थे उनसे भी हम लोग दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सिर्फ हेलमेट और या सीट बेल्ट का चालन करने से नहीं होगा।
अभी जो है हम लोगों का इतना युवा जो लड़के हैं वो स्कूटी चलाते हैं, वो बाइक चलाते हैं, इतना रफ्तार से वो लोग चलाते हैं कि एक्सीडेंट कब हो जाए ये इतना पिछले 2-3 महीने में इतना बड़ा एक्सीडेंट भी हो चुका है। हमारे 2-3 युवक तो ऑलरेडी एक्सीडेंट से भी उनका डेथ हो चुका है। तो इसी के लिए हम लोग का ये मांग है कि हमारे जो पुलिस कर्मी है, हमारे जो ट्रैफिक इंचार्ज है, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि रेगुलर चेकिंग हो, सिर्फ बाइक या स्कूटी का नहीं, बड़ा गाड़ी का भी या ऑटो का भी, इवन ऑटो का भी किस हद तक वो प्राइवेट है या कमर्शियल है, वो लोग का जो अभी ड्राइवर्स है वो बाहर से भी आते हैं, तो उनका भी प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग का जो 4 व्हीलर्स है या एसयूवीज है, इनका भी प्रॉपर चेकिंग होना है, किसका पोल्यूशन अप टू डेट नहीं है, किसका इंश्योरेंस नहीं है, ये सभी तमाम बातें भी हमें लगता है कि इस इतना बड़ा इंसिडेंट में ये सब भी सुराग दे सकता है अगर ये प्रॉपर चेकिंग हो। तो साथ ही साथ हम लोग का और काफी सारे मांग भी है कि पिछला जो बहुत सारे पेंडिंग जो केसेस है दिमा हसाव का, हम लोग का हाफलोंग, खासतौर से हाफलोंग का, उसको भी फिर से रीओपन किया जाए और अच्छे तरीके से छानबीन किया जाए। साथ ही साथ अगर कोई नेग्लिजेंसी ऑफिसर से, तो उनको भी खरी से खरी कार्रवाई किया जाए उनके ऊपर भी। और साथ ही साथ जो हमारे विक्टिम्स के फैमिली से जो परिवार जाने हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन दिया जाए कि उनका जो केसेस है वो किस स्थिति में है, अभी किस हद तक वो लोग का पहुंचा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संतोष होताई का जो मर्डर केस है उसका जो कल्प्रिट है वो कौन है, ये सबको मालूम है, लेकिन अभी तक उनका जो केस है वो अभी किस लेवल में है ये किसी को जानकारी नहीं। तो ऐसा बहुत सारा केसेस है। और साथ ही साथ ऐसा अभी जो गुनहगार है उनका ऊपर ऐसा डर का माहौल अभी पहुंचाना होगा कि हमारे जो आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा केस होता है तो उनका ये घटना करने से पहले उनका रूह कांप जाए, ऐसा तक हम लोग को सख्ती दिलाना होगा। अन्यथा ये जो हमारे ये खास तौर पर शायद हम लोग को लग रहा है कि विभिन्न जगह पर अभी सिंडिकेट, जो मार्केट में सिंडिकेट भी हो रहा है, और हम लोग का एक तरफ से डर का माहौल है कि आज शायद 7 या 8 बजे के बाद हाफलोंग मार्केट भी क्लोज हो जाता है, या अन्य मार्केट तो शायद 6-7 बजे में क्लोज हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ते जाएगा तो ये हमें लगता है कि भविष्य में हम लोग का जो सिचुएशन है इसको अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। इसलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को खास तौर से जल्द इस कार्रवाई को कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी गुनहगार है उसको सजा दिलाई जाए, और जो विक्टिम है उनका परिवारजनों को जिस प्रकार से उनका कंपेंसेशन हो, जिस प्रकार से उनको न्याय नीति हो उनको मिले, ये हम लोग का मांग है। नहीं होने के कारण ही ना ही यहाँ पे अच्छा क्योंकि जिस हद तक हम लोग को मालूम है तो कई सारे इंसिडेंट जो घटना होते हैं उसके बावजूद उसमें किसी को सस्पेक्ट के रूप में नहीं पकड़ते, तो किसको इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, ये केसेस जो हाईकोर्ट तक चला जाता है, फिर भी इसका जो जस्टिस मिलने का है ये हम लोग को साफ तौर से नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए हम लोग सिर्फ मेमोरेंडम देते रहेंगे और सिर्फ रैली करते रहेंगे, धरना करते रहेंगे, तो इससे क्या होता है कि हम लोग देखो पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है कि आजकल का जो इतना बिजी शेड्यूल में कोई का पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि वो सारा दिन सारा रात वो चीज में कंटिन्यू करे। और हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता है कि हम लोग जब एक केस के लिए धरना करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, तो ये सिर्फ फाइलों में दबा रह जाता है। और साथ ही साथ इसका अगर प्रोसेस करना हो तो अगले ही दिन ऐसा और दूसरा केस निकल जाता है। तो किस केस को लगातार हम लोग कंटिन्यू करें, उसको प्रोसेस करें, ये अभी हम लोग का ताज्जुब हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग भी सोच रहे हैं, अभी डिसीजन हम लोग ले रहे हैं कि ऐसा कुछ कदम उठाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि भविष्य में ऐसा घटनाएं बंद होने के लिए, ऐसा घटनाएं जो भी करता है, जो भी गुनहगार है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए, चाहे वो धरना का हो, चाहे वो रैली का हो, या तो मास एक डेमोन्स्ट्रेशन हो, जो हम लोग लॉन्ग वॉक के लिए भी ऐसा सोच रहे हैं। अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो इन प्रॉपर इंक्वायरी का कमी के वजह से हम लोग को लग रहा है कि ये जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए इतने सारे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जिलाओं में अगर ऐसा मिस्टीरियस केस भी सॉल्व हो जाता है
तो ये छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर काफी सारे सीसीटीवीज का बात आप लोग देख लीजिए, बहुत सारे सीसीटीवीज भी है यहाँ पे। हर हर इंसान को हम लोग अच्छी तरीके से फेस टू फेस भी जानते हैं। इतना तक हम लोग का क्लोजनेस होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे, इतना तक हम लोग का चलाचल होता है आपस में। तो इसी में है अगर कोई गुनहगार होता है या कोई विक्टिम होता है तो इतना इतना परेशानी किस में होता है कि हम लोग केसेस जो है इतना सारा पेंडिंग होता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हम लोग सरकार से भी करते हैं, ये हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से भी करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो केसेस है ये पुलिस के द्वारा ही छानबीन होता है। अल्टीमेटली हम लोग अपर कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, लेकिन अन्यथा हम लोगों को जस्टिस नहीं मिलता।